Right. So here is the worksheet which people are supposed to solve today, and I will share its answer key by tomorrow or maybe today evening. Right, here it goes. Okay, so fill in the blanks using articles. First question is you have to write the articles in these blanks. Now, first of all, write the 3 articles which are part of English grammar. जल्दी से तीनों articles लिख के बताओ. We have 3 articles. We have 3 articles in English language. So which articles are those? कौन से words को articles कहते हैं? Very good. All of you are writing and the. That's perfect. And the. Okay, great. Let me just tell you one more time that what is the usage of and the. देखो, जब भी हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, we have to use or an. ओके, और एन हम यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज की बात कर रहे होते हैं. तो when do we use an? An हम कब यूज करते हैं? We use an जब हमारा कोई वर्ड स्टार्ट होता है वाउल साउंड के साथ. आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कि हमारा वर्ड वाउल से शुरू होगा. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाउल साउंड. उस वर्ड की जो साउंड है वो वाउल से स्टार्ट होनी चाहिए. ओके, तब हम एन यूज करते हैं. नाउ द थिंग इज दैट कभी कभी हम वर्ड्स के साथ भी यूज करते हैं, द भी यूज करते हैं. तो वो क्यों होता है? तो एक सीधी सी बात है, जब हम किसी एक सिंगुलर चीज के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे. एंड दोबारा अगर फिर से हम उसी सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं देन वी हैव टू यूज द. फिर हम द यूज करेंगे. वन मोर थिंग, अब हम द और कहाँ यूज करते हैं? वी कैन यूज द with things which are unique in nature. ऐसी चीजें जो कि एकदम यूनिक है, अलग है, पूरी दुनिया में उनके जैसा कुछ और नहीं है. राइट, फॉर एग्जाम्पल कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है इंडिया की, लाइक द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, पूरी दुनिया में एक ही है. द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द अर्थ, राइट, ये सब दुनिया में एक है. दैट इज व्हाई वी यूज द विद देम. देन विद द नेम्स ऑफ द रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, newspapers, the holy books like the Bible, the Quran, then we have the Bhagavad Gita. With all these kind of books जो कि एक है दुनिया में, the Quran, इनके साथ द यूज किया जाता है. और हम द कहाँ यूज करते हैं? With the names of the newspapers like the Economic Times, the Tribune, the Hindustan Times. या फिर there are a couple of things more like जब हम बता रहे हैं कि कोई चीज एकदम बेस्ट है, लाइक द बेस्ट. कोई अगर चीज बड़ी है तो बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी है, सबसे ज्यादा. जब हम बता रहे हैं कोई चीज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे ज्यादा छोटी, तो हम कहेंगे द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट. ओके, सो यहाँ पर भी हम द का इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक, लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज. Fill in the blanks using suitable articles. So when you give the answers, write the question number with that. Like 1 का answer ये है, 2 का answer ये है. Okay, write like this. So the first question is dash Nile is in Egypt. Okay, now you need to know that Nile है क्या. Let me tell you, Nile is a river. Nile एक river का name है जो कि Egypt में है. Okay, so we know that with the names of the river we use the word the. हम the लगाते हैं rivers के साथ. So let's write the. हम भी the use कर देते हैं. The answer is the Nile is in Egypt. Now come to number 2. Where are dash boys? Where are dash boys? अब हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? Boys. ज्यादा है बॉयज. ओके, ज्यादा के साथ हम कभी भी अ या एन नहीं लगाते. वी नेवर यूज अ और एन विद मेनी थिंग्स, विद प्लूरल. सो हमारे पास बचता क्या है? द. वी आर लेफ्ट विद द ओनली. सो आंसर इज द. हम ये नहीं कह सकते ना वेयर आर अ बॉयज, बिकॉज अ मीन्स सिंगुलर थिंग. अ refers to singular thing only. So we cannot use a or an with boys. We have to use the. Where are the boys? So
you have to remember that whenever we talk about a plural thing, जब हम ज्यादा चीजों की बात करते हैं, then we have to use the. There is no idea that we'll use a or an there. A and करने का मतलब ही नहीं है उधर. Number 3, do you want dash orange? Now orange starts with a vowel sound. Orange. O is a vowel, no? So orange starts with a vowel sound. What shall be the answer then? A, an, or the? Write the question number and then write the answer. Number 3, an. That is correct. So, do you want an orange? Do you want an orange? Okay. Now, let me change this sentence a bit. If I say oranges, देखो मैंने एक छोटा सा change किया. I added an S with the orange. Now it became oranges. Now tell me, अब क्या आंसर होगा? Do you want dash oranges? Do you want dash oranges? अब यहाँ पर आएगा the. क्योंकि हम एक सिंगुलर के साथ कभी भी अ या एन यूज नहीं करते. अब चाहे ऑरेंजेस स्टार्ट हो रहा है वाउल साउंड के साथ, बट इट इज नॉट वन. ये एक नहीं है, ये ज्यादा है, ज्यादा ऑरेंजेस है. दैट इज व्हाई विल यूज द. अगर सिंपल ऑरेंज लिखा होता एन करेक्ट था, बट अब ऑरेंजेस बन गया है तो द करेक्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट let's talk about fourth one. I have dash great idea. मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है. Great idea. So, I have a great idea. Okay, number 5. How many hours do you work on dash average? अब सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करो. How many hours do you work on an average? Average means कि तकरीबन, ठीक है, कि हर रोज आप तकरीबन कितने घंटे काम करते हो. एक रफ सा आइडिया कि आप कह सकते हो कि मैं 3-4 घंटे काम करता हूँ. मैं मतलब ऑन एवरेज मैं हर रोज 5 घंटे काम करता हूँ. तकरीबन 5 घंटे काम करता हूँ. ओके, सो एवरेज स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड. एवरेज स्टार्ट हो रहा है हमारा वाउल साउंड के साथ, राइट? सो व्हाट शैल बी द आंसर देन? What shall be the answer? Okay. How many hours do you work on an average? Because average starts with a vowel sound, so we'll use an. Okay, number 6. Dash boy who is wearing dash cap is dash best student of our class. Number 6. And number 6, you have to write 3 articles. What will they be? Dash boy who is wearing dash cap. वो लड़का जिसने एक कैप पहनी हुई है, वो हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है. अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि बॉय के साथ हम क्या यूज करें, अ बॉय और द बॉय. अ बॉय और द बॉय, व्हाट शैल वी यूज? हम यूज करेंगे द बॉय. नाउ रीजन क्या है? रीजन ये है कि उस बॉय की बात हो रही है जिसने कैप पहनी हुई है. ओके, हो सकता है देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मेनी बॉयज इन दैट क्लास, लेकिन कैप सिर्फ एक ही बच्चे ने पहनी हुई है और वो बच्चा हमारी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है. तो जिस बच्चे ने कैप पहनी हुई है, हम एक स्पेशल आइडिया दे रहे हैं, एक स्पेशल हिंट दे रहे हैं. जिस बच्चे ने कैप पहनी हुई है वो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है. तो जब हम किसी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक, कोई स्पेशल डिटेल देते हैं, तो फिर वो कॉमन से, फिर वो आम बात से खास बात, खास चीज बन जाती है. ओके, देन वी डोंट यूज अ और एन, देन वी हैव टू यूज द. जब हम स्पेशली किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वो लड़का जिसने कैप पहनी हुई है, कुछ खास बता दिया, अब पहचानने में इजी हो जाएगा ना कि जिसने कैप पहनी है वो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है.
That's why we'll use the boy who is wearing dash cap. उसने एक कैप पहनी है तो a cap. Is dash best student of our class. मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज सबसे ज्यादा अच्छी हो, जिसे हम बेस्ट कहते हैं, तो बेस्ट के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? दैट इज द को हम बॉय के साथ कैसे कर सकते हैं? द को हम बॉय के साथ इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें एक स्पेशल बॉय के बारे में बताया गया है. स्पेशल क्यों है वो बॉय? क्योंकि उस बॉय ने कैप पहनी हुई है. वैसे तो क्लास में बहुत सारे बॉयज हैं, बट उस बॉय की खासियत क्या है? उसने एक कैप पहन रखी है. हमें पता है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं. एक्सक्यूज मैम. यस बेटे. मैम इसे है ना क्वेश्चंस ही लिखने के अकेले आंसर्स ही लिखने हैं? प्लीज राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एज वेल. आप क्वेश्चंस भी लिख लो. ओके, ओनली देन रिवीजन के टाइम आपको इजी रहेगा. So I was talking about the boy. क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि हम एक ऐसे लड़के की बात करें जिसने कैप पहनी है, और वो लड़का एक ही है क्लास में. The boy who is wearing a cap. वो लड़का जिसने कैप पहन रखी है. हम ऐसे नहीं करें कि कोई भी लड़के की बात करें. नो, हमने एक स्पेशल आइडिया दिया कि वो लड़का जिसने कैप पहनी हुई है. तो जब वो स्पेशल हो गया, देन वी हैव टू यूज द, पर तुम अ यूज नहीं करेंगे. Okay, next one, number 7. It is dash aeroplane. Dash aeroplane is so huge. H-U-G-E, huge. Huge means big, bada. So give me the answers. Ekveer has written the answer. It is an aeroplane. That's perfect. क्योंकि एक aeroplane है तो an use करेंगे. Dash aeroplane is so huge. अब देखो हम उसी एरोप्लेन के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, तो अब हम द यूज करेंगे. परफेक्ट. लेट मी राइट इट. इट इज एन एरोप्लेन. द एरोप्लेन इज सो ह्यूज. राइट. पहले एन यूज किया, बाद में द क्यों यूज किया? क्योंकि अब हम उस एरोप्लेन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं. ओके. Now let's come to the second exercise. It is identify the tense in the sentences given below. अब आपको टेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं. एग्जाम में भी बेटे टेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस. कौन से टेंस में सेंटेंस लिखा गया है? नाउ द फर्स्ट वन इज दे ऑलवेज स्टे एट द रिजेंट होटल. वो हमेशा रिजेंट होटल पे स्टे करते हैं. ओके, वो हमेशा रिजेंट होटल पे स्टे करते हैं. हमेशा की बात हो रही है, रूटीन की बात हो रही है. सो दैट मीन्स व्हिच टेंस इज दिस? राइट इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू. एक्सक्यूज मी मैम. यस बच्चे. एक्सक्यूज मी मैम. मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ equipment? equipment. व्हाट इज द वर्ड बेटा? मैम जो आपने पार्ट ए का मैम फर्स्ट क्वेश्चन कराया मैम, उसका लास्ट वर्ड. It is Egypt. E-G-Y-P-T. Egypt. Egypt is the name of a place. ठीक है, एक जगह का नाम है इजिप्ट. ओके, राइट. सो they always stay at the Regent Hotel. Means always, हमेशा, रूटीन की बात है. जब भी वो आते हैं तो रिजेंट होटल में स्टे करते हैं. That means डेली रूटीन के बारे में बताया जा रहा है. So yes, this sentence is of simple present tense. इसमें हमने simple present tense use किया है. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Excuse me, ma'am. मैम जो 7 नंबर पर है मैम, मुझे वो नहीं समझ आया. ओके, आपको 7 नंबर पे समझ नहीं आया. ओके, इट इज डैश एरोप्लेन. ये समझ में आया कि एन क्यों आया? यस बेटा, टेल मी. एन एरोप्लेन क्यों आया? इतना समझ में आया आपको? यस मैम. ओके, बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? हमने एन क्यों यूज किया?
Yes, बच्चा, please speak up. Excuse me, ma'am. हाँ जी. Ma'am, what is the meaning of average? And what is the meaning of caste? Okay, I'll tell you everything. Let's first of all take this query up. 7th sentence किसको नहीं समझ में आया था? Please tell me your name. Okay, जिसको भी समझ में नहीं आया था, I'm going to repeat it. It is an aeroplane. हमने लिखा क्योंकि aeroplane starts with a vowel sound. That is why हमने first time an लिखा. But देखो, उसी एरोप्लेन के बारे में बेटे दोबारा बात हो रही है. अब उसी एरोप्लेन के बारे में हम दोबारा भी बात कर रहे हैं. That is why हम the use करेंगे. So whenever in a sentence. कौन से सेंटेंस में आता है? Beta, please wait for a second. I'm talking about the 7th sentence of articles. Okay. So जब भी हम एक चीज की बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, हम अ या एन यूज करेंगे. अ और एन यूज करेंगे. ओके. बट अगर उसी सेम चीज के बारे में दोबारा बात चल रही है, इन दैट केस विल यूज द. फिर हम द यूज करेंगे. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. मैम, इससे आपके नोटबुक लिखना है क्या चैट बॉक्स में? मुझे ये नहीं समझ आएगा. बेटा अभी आप चैट बॉक्स में लिखोगे, उसके बाद जब मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, देन यू विल डू इट इन योर नोटबुक्स. अभी आप सब चैट बॉक्स में लिखोगे. आफ्टर द क्लास इज ओवर फिर आप इसको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करोगे. ओके. Now let me talk about sentence number 2 of the tenses. We shall bring food for the picnic tomorrow. Which tense is this? We shall bring food for the picnic tomorrow. अब हम किस टेंस में shall with the first form of verb use करते हैं और किस में हम tomorrow की बात करेंगे, future की बात किस में करेंगे? Tomorrow means आने वाला कल, right? So in which kind of tense shall we talk about the future tense, the future? It is very much clear. अगर हम कल की बात करें, tomorrow, आने वाले कल की बात करें, it means हम future की बात कर रहे हैं. So that is simple future tense. In simple future tense, what do we use? We use shall or will. Will और shall use करते हैं simple future tense में, और साथ में verb की first form जैसे कि bring. Okay. Now quickly tell me, हम shall कहाँ use करते हैं? किस subject के साथ do we use shall? With which subject do we use shall? No, we don't use it with the third person. Okay, Dhankar says with we. Very good. Abhinav says with I. Very good. With I and we, I और we के साथ हम shall use करते हैं. I shall, we shall. इनके साथ हम shall use करेंगे. That means हम first person के साथ shall use करते हैं. When we talk about simple future tense, तो हम first person singular और first person plural इनके साथ हम shall use करते हैं, which means I shall, we shall. So we shall bring food for the picnic tomorrow. It is simple future tense. It is simple future tense. Right? This is going to be simple future tense. Let's discuss one more tense and then we shall proceed to the next question. Lily spilled the milk on the floor. Now here spilled means गिरा देना. जब आप कोई चीज गिरा देते हो नीचे, okay, it is called as spilled. ये word बनता है spill. जैसे आप classroom में बोलते थे ना, ma'am, he has spilled the water on the floor. He spilled the water on the floor. तो spill की second form है spilled. Means नीचे गिरा देना, बिखेर देना किसी चीज को. So we have used second form of the verb here. So tell me, in which tense do we use the second form of the verb? Which tense is that? Is it simple future, simple past, or is it simple present tense? कौन सा tense होगा वो?
Very nice. We use second form of the verb with simple past tense, right? Next two you'll do yourself. Next two आप खुद से करोगे. Okay, now the next one. Arrange these group of words to make meaningful sentences. चलिए बनाइए फिर. Arrange these group of words to make meaningful sentences. The first one is an exercise is this easy. An exercise is this easy. So make a meaningful sentence. Yes, quickly. Okay. So whenever you frame a meaningful sentence, it has to start with a capital letter and it should end with a full stop or a question mark. इसका आपने ध्यान रखना है. So if you are typing also, when you are typing also in the chat box, take care of these little things, that the sentence should start with capital letter, like Samar Parmar. He has not started the letter with capital letter और last में बेटे आपने full stop भी नहीं लगाया. Okay, जब type भी कर रहे हो तो please take care of all these things. Right, so this is an easy exercise. So I have to put a full stop as well. Let's do the second one. Mother, the is in my kitchen. Mother, the is in my kitchen. So what's the answer to this question? Mother, the is in my kitchen. Very good. Sameer has given the correct answer. Good. He's taken care of the capital letter and full stop also. आपको पता है that ये जो चीजें होती हैं, capital letters डालना, full stop, question mark, we call them punctuation marks. इनको punctuation marks कहा जाता है in grammar. You need not to learn this thing अभी ये punctuation marks क्या है क्या नहीं. Just for your information, इन चीजों को हम कहते हैं punctuation marks. So my mother is in the kitchen. My mother is in the kitchen. The next one you can do by yourself. Next up अपने आप भी कर सकते हो. Right? Now somebody was asking me about average. कोई बच्चा average के बारे में पूछ रहा था. Ma'am, what is the meaning of average? As it has been used in this sentence. Sentence number 5 में हमने use किया ये word average. How many hours do you work on an average? तो एवरेज का मीनिंग यहाँ पर है तकरीबन तकरीबन. अब मान लो कोई इंसान एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा है, नेक्स्ट डे वो 5 घंटे काम करता है, फिर नेक्स्ट डे अगेन वो 4 घंटे काम करता है, नेक्स्ट डे फिर वो 4.5 घंटे काम करता है, फिर 5 घंटे काम करता है. तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आप रोज कितने घंटे काम करते हो, तो कभी मैं 4 घंटे काम कर रही हूँ, कभी 4.5 घंटे, कभी 5 घंटे. तो डिफरेंट टाइमिंग्स है ना. डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द वर्क जो मुझे मिला है. अगर मैं आपसे पूछूं आप रोज कितने घंटे पढ़ते हो, आई एम श्योर कि आप लोग सब 2 घंटे तो रोज नहीं पढ़ते हो, 3 घंटे तो रोज नहीं पढ़ते हो. समटाइम्स आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हो, समटाइम्स आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ते हो, समटाइम्स आप सिर्फ 1 आवर और 30 मिनट्स पढ़ते हो. सो एवरी डे डिपेंड्स अपॉन द वर्क. कितना वर्क आपको मिला है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो. लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आप रोज कितने घंटे पढ़ते हो, आप एक चीज तो नहीं बोल सकते ना कि मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ, क्योंकि आप कभी कभी 2 घंटे भी पढ़ लेते हो, समटाइम्स आप 1.5 आवर भी पढ़ लेते हो. तो एवरेज बोलना मतलब एक रफ आइडिया दे देना. ओके, मतलब बीच का एक टाइम बता देना, ना 1 घंटा ना 2 घंटे, बीच का टाइम. फिर हम कह सकते हैं
I study for 1.5 hour every day. बीच का टाइम हो गया, 1 और 2 के बीच में क्या आता है 1.5. So average means approximate एक फिगर बता देना, मतलब अंदाजा सा बता देना एक टाइम का, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक अंदाजा सा बता देना. ओके, so how many hours do you work on an average? कि रोज तकरीबन कितने घंटे आप काम करते हो. Okay. Now, if you have any other doubt, then please write in the chat box. And I also need to take the attendance as well. Let me do that also. Nobody will leave the meeting as I have to take the attendance, right? Meanwhile, if there is a doubt, please write your name in the chat box. I'll unmute you to ask the question. Yes, Samreet has a doubt. Samreet, please unmute yourself and ask your doubt. मैम मेरे पास कोई डाउट नहीं है, बट मैं आपको एक चीज, मैम जो आपने लास्ट वाला सेंटेंस निकाला था, माय मदर इज वो वाला, तो आपने लिखा उसमें माई नहीं डाला, बट आपने जो जंबल सेंटेंस बनाया था उसमें माई था. Okay, let me see. हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया होगा. Let me see. देखो बेटा, लिखा तो है माई. सी, देखो जरा. मैम मुझे शायद वैसे ही लगा होगा. हाँ, it's okay, no problem, it's okay. Okay, somebody is asking the meaning of destination. Destination means वो जगह जहाँ पर आप जाना चाहते हो, means आपकी मंजिल. That place where do you want to go. For example, you plan for a picnic. आप एक पिकनिक प्लान करते हो. आप पिकनिक प्लान करते हो कि आप आज जाओगे जलंधर में निक्कू पार्क में. ओके, जलंधर में there is a park called निक्कू पार्क. You plan कि आज हम वहाँ पिकनिक के लिए जाएंगे. ओके, so that is your destination. आप वेकेशन प्लान करते हो, छुट्टियां प्लान करते हो कि तुम छुट्टियां गोवा में जाके मनाएंगे. So Goa is your destination. Means the place where you want to reach. जिस जगह आप पहुंचना चाहते हो, that is your destination. All right. Any other doubt? Then please write in the chat box. Write your name. Your attendance has been taken. Attendance ले ली गई है आपकी. So if you want to leave the meeting, you can leave the meeting. Otherwise, we still have 2 minutes more. If any doubt is there, please let me know. Okay, so let me ask from Ekveer. Ekveer has a doubt. Yes, Ekveer, unmute yourself. Ma'am, meaning of caste. Caste, okay. देखो, in this sentence जो आपको sentence दिया है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है, let me see. Because the meaning of caste depends upon the sentence. Sentence से sentence अलग-अलग meaning होता है इसका. So here the sentence. I know that it is in forms of verbs, क्योंकि ये forms of verbs में है, तभी मैंने ये sentence आपकी exercise में भी दिया था. Okay. So caste का meaning होता है जब आप किसी को किसी role के लिए select कर लेते हो. Okay. For example, अगर कोई आपको बोले that हिमांशु को हमने इस रोल के लिए कास्ट कर लिया है. ओके, सो उसका मीनिंग है कि हिमांशु को सिलेक्ट कर लिया है उस रोल के लिए. हिमांशु ये रोल करेगा. मान लो एक मूवी में हीरो का रोल है, वो हिमांशु को मिला, तो हम बोलेंगे कि हिमांशु को कास्ट कर लिया गया है. एक तो ये मीनिंग है. नेक्स्ट मीनिंग इसका और क्या हो सकता है, जब हम कहते हैं कि शेडो कास्ट